So for over the past 25 years, Uttarakhand has transformed remarkably. What began as a region with limited resources has evolved into a model of progress through innovative infrastructure projects, educational reforms, and advanced healthcare initiatives. This phenomenal journey sets the stage for our discussion on the future, vision for Uttarakhand's development. Today, our expert panel will delve into strategies to continue this upward trajectory and shape the next chapter of Uttarakhand's progress. Allow me to introduce our distinguished panelists. Mr. Saurabh Tiwari, Head and Director of the Dehradun office of Bureau of Indian Standards. Shri Tiwari brings over 17 years of experience to the table. He has represented BIS at numerous national and international forums, served as a lead assessor of ISO 9001 and ISO 22001 and the anti-bribery management system, and played a pivotal role in modernizing BIS's testing facilities. His extensive expertise spans across all three verticals of the Bureau, making him a respected authority in the field. A round of applause, please. Next is Mr. Krishna Kumar Gupta. Shri Krishna Kumar Gupta serves as the Divisional Retail Sales Head of Indian Oil Corporation Limited, overseeing the entire retail business of Uttarakhand. He also holds the position of state-level coordinator for the entire oil industry in Uttarakhand, representing IOCL, BPCL and HPCL. Before his current role in Dehradun, he played a pivotal role at Indian Oil's marketing head office, where he was instrumental in formulating key policies, including the creation of EV charging infrastructure across India. Having worked in Punjab, Rajasthan, and Maharashtra, he now contributes significantly to Uttarakhand's energy sector. A huge round of applause, please, and I would request him to please take his seat on the stage. Next is Mr. Rajendra P. Mamgen. Rajendra P. Mamgen is a development economist with over 3 decades of experience. He specializes in labor, employment, migration, education, skill development, human poverty, and policy impact evaluation. Currently, he serves as Professor, Head Department of Economics and Dean, School of Social Sciences at Doon University in Dehradun. Dr. Mamgen has led 30 policy-oriented research studies, authored and co-authored 12 books, and published over 60 research papers in national and international journals. Previously, he has held positions at NIRDPR Hyderabad, Giri Institute of Development Studies, and the Indian Institute of Dalit Studies, ICSSR and IHD, among others. A huge round of applause, please. And I would request him to please take his seat on the stage. Next is Mr. S.M.A. Kazmi, former editor of the Tribune, Dehradun. S.M.A. Kazmi is a veteran journalist with an illustrious career spanning 40 years. Having worked with leading publications like the Indian Express, the Tribune, across almost all of North Indian states. Since 1998, he has been based in Dehradun, closely documenting Uttarakhand's journey. From its days as part of Uttar Pradesh's Kumaon and Garhwal range, Garhwal divisions, to becoming a full-fledged state and now emerging among the top-ranking states in terms of development and growth. His deep understanding of the region's political, social, and economic landscape makes him a distinguished voice in journalism. Please welcome Mr. S.M.K. Kazmi. Thank you. And Mr. Manoj Singh will be moderating this session. He's a senior journalist. He's also the founder and editor of TICE News, the go-to platform for all the news related to business and startups. Over to you, Manoj sir. माँ गंगा का पानी और पहाड़ की जवानी, इन दोनों की रवानी जो है पहाड़ से होकर समतल प्रदेशों की ओर जाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस प्रदेश में माँ गंगा का पानी भी है, देवों का आशीर्वाद भी है और बहुत ज़बरदस्त जवानी भी है।
मगर हमारा दुर्भाग्य है कि ये सब कुछ यहाँ से निकल के समतल प्रदेशों की ओर जाता है। और सनातन काल से हम देखते आए हैं कि प्रगति वहीं होती है, डेवलपमेंट वहीं होता है जहाँ पर पानी जाके ठहरता है और जवानी जाके रुकती है और काम करती है। और यही इस प्रदेश का सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ की आर्थिक उन्नति और विकास में। तो जबकि हम बात कर रहे हैं इस प्रदेश के विकास को लेकर जो विज़न है उसके बारे में, तो इसे सेट करने के लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति जो हो सकता है वो एक इकोनॉमिस्ट ही हो सकता है, जो इसके बारे में पहले हमें एक भूमिका बता सके। तो सर आप बताइए राजन जी कि इस प्रदेश की अब तक की जो प्रगति हुई है वो तो हमने देख ली है। पिछले कुछ वर्षों में जो हमें यहाँ पर युवा नेतृत्व मिला है, श्री पुष्कर जी धामी के मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके कार्यकाल में जो लगातार प्रगति हो रही है वो भी हम लोग देख रहे हैं, मगर चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इस वक्त वो कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना इस प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है? धन्यवाद मनोज जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. It's indeed a very great pleasure for me to be here, and I am thankful to Mr. Gupta ji for inviting me. मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा आज की डेट में उत्तराखंड, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री देखी, बहुत प्रोग्रेस किया है और ये प्रोग्रेस मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर जाहिर हुई है। और ये क्रेडिट जाता है हमारी लीडरशिप को, ये क्रेडिट जाता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, ये क्रेडिट जाता है हमारे यहाँ की सारी जनता को कि हम लोगों की जो पूरी जीडीपी जो है आज की डेट में पर कैपिटा जीडीपी आप देखेंगे तो हिमाचल को क्रॉस कर चुकी है। हम बोलते थे हिमाचल के बराबर आना, हिमाचल से हम काफ़ी क्रॉस आगे हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये ऐसा अचीवमेंट मेरे ख्याल से हर सेक्टर में हुआ है। और ये सेक्टर जो है मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड जो है अभी पर्टिकुलरली एक और नए पटल पे आ गया है कि जहाँ पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका सारे एक्लोड्स आपको मिल रहे हैं। परंतु इसके साथ मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जो आपने शुरुआत की थी कि पहाड़ का जवानी, पहाड़ की पानी किसी काम नहीं आती है, वो एक और वो रवानगी है। तो वो रवानगी अभी थमी नहीं है। और ये जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि जो किसी भी प्रदेश के लिए जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ जो रीजनल इनइक्वलिटीज़ हैं यदि आप उनको एड्रेस नहीं करोगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो एक ऐसी होगी कि पर कैपिटा इनकम आपकी ज़्यादा है, परंतु जो है कि उसका जो यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कोई कम कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पहाड़ में अभी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, सब चीज़ रोड गई हैं। आप कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें वहाँ पे है, इंटरनेट है, सब चीज़ है, परंतु वहाँ पे पहाड़ पे आदमी रुक नहीं रहा है। अभी भी जो है हमारी जो रिसेंट स्टडी आपके लिए मनोज सर हैं पंजी आप, और वहाँ पे हम लोगों ने मतलब ये पाया है कि माइग्रेशन अभी भी जो है थम नहीं रहा है। और एक सरप्राइजिंग बात है कि माइग्रेशन सिर्फ मेल माइग्रेशन नहीं है, अभी जो है 35% यंग वुमन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ माइग्रेटिंग टू द प्लेन एरियाज, वो वहाँ नहीं रहना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का डायलेमा है। और ये डायलेमा जो है बेसिकली ये इसलिए होता है कि आपने वहाँ पे जो बेसिक बुनियादी चीज़ जो है जिसके बेस पे उत्तराखंड एज ए स्टेट की फाउंडेशन पड़ी थी, वो पड़ी थी कि पहाड़ का लिए एम्प्लॉयमेंट, पहाड़ की बेसिक हेल्थ, पहाड़ की बेसिक एजुकेशन, यदि ये करेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मतलब डेवलप्ड हो जाएंगे। और ये हमारी एक सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड भी रही है। आप देखेंगे अभी भी जो सारे सोशल इंडिकेटर डेवलपमेंट में जो है पहाड़ में उत्तराखंड की यदि हिल रीजन को देखेंगे अभी भी आगे है, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी आगे था। तो ऐसे उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं। परंतु इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो है पहाड़ अभी भी पिछड़ा हुआ है। यदि आप तुलना करेंगे पहाड़ के मतलब जो है 10 जिलों की 3 जिले प्लेन्स के, तो बहुत पिछड़ा हुआ है। 70% आपकी टोटल जो है GSDP का जो है वो 3 जिलों में आ रहा था। इतनी इनइक्वलिटी के कारण मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मेजर मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, क्योंकि अभी भी जो है 17-18% जो यूथ युवा जो है वहाँ पे बेरोजगार है। और यदि इस बेरोजगारी को मतलब जो आप ढंग से एड्रेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। So we'll come to that. Saurabh ji, you're head of director of the Dehradun Office of Bureau of Indian Standards, and since you work with so many institutes, small businesses, SMEs, startups, और
किसी भी डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. यू मस्ट हैव हैड योर ओन एक्सपीरियंस इंटरेक्शन विद सच इंडस्ट्रीज एंड पीपल. सो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज क्या चीज़ है जो रोक रही है या रोक नहीं पा रही है हमारे यूथ को, और उनके लिए अब तक क्या क्या किया गया है? Thank you, first of all, Manoj ji, and sincere thanks to the Indian masterminds that they have invited me to share the perspective of how Bureau of Indian Standards, in particular, which happens to be the national standards body, feels about how this state can grow exponentially, provided we have certain very focused areas where we need to work upon. So you rightly said that the present regime, and in fact our Honorable Chief Minister Saab had done a relentless job in uplifting the, I would say, the local people to a level that they could realize that they are in a very progressive state. But the point here which I personally feel is that for any developed country, if you see, the fundamental backbone is basically how your systems, processes and everything is defined. From Bureau's perspective, if I tell you that we are into standardization, and this had been our basically the promotional area also in the state of Uttarakhand when I joined as a head last year, that all the departments, irrespective of the different areas where they are working upon, whether it's rural development, public works department, water sanitation, renewable energy, they all first of all should focus on the deliverables, how efficiently they can work upon that. So recently, Manoj ji, we have come up with a guideline which has been issued by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances by the Government of India, which is Sevottam guidelines. So a mandate has been given that all the government functionary has to obtain system certification for that. One Indian standard is there, IS 15700, that is Service Quality Management System. Going by that, even in our last state level committee meeting of Bureau of Indian Standards, which is chaired by the Honorable Chief Secretary of the state, it was also directed thereby that all the department will now get this certification, which will ensure that the kind of services they are giving to their consumers, to their customers. Customer basically we mean by the citizen of this state, and they are done on time. And if we are efficient in our services, I don't think there is any impediment which can be there for our exponential growth. And secondly, you see, Uttarakhand is rich in natural resources. So for having a good economy and for having a good level as a developed, I can say, state, we shall thrive more on our natural resources. So Bureau had also been somehow substantiating the fact by formulating standard for the renewable energy, for even the projects which are more sustainable, looking towards the ecological and environmental issues, having a sustainable environment. There also we have made standards. So this had been our request from the local government also, that they must support these standards, they must enforce these standards. Let's say, for example, in the case of renewable energy, the solar flat plate panels which are being utilized everywhere in the state, they all are having a standard behind that. So we are endorsing that as well. Moreover, in Uttarakhand, if we all see, it's a state which is rich in tourist places. So lots of visitors comes to Uttarakhand every year. So let us focus more on those areas which are our, I would say, strong points. So instead of going to certain areas which may not be quite, I would say, relevant in the context of Uttarakhand, if we focus more on tourism, if we focus more on natural resources, you can say encashment, I think there is nothing which can stop us becoming a developed state. थैंक यू सर. सो अनिल जी, आप इंडियन ऑयल के सर्विस सर्वाए हैं यहाँ पर. आई मीन एनर्जी इज़ की टू एनी डेवलपमेंट, और पूरी दुनिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से दूर जाना चाह रही है. ईवीज़ को लेके काफ़ी चर्चा होती है हमारे पूरे देश में. सरकार की अपनी प्राथमिकता भी है ईवीज़ को आगे बढ़ाने की. सो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है स्टेट में अब तक काम करने का? आप तमाम देश में सब जगह काम कर चुके हैं, तो कैसे आप बाकी प्रदेशों के एनर्जी कंजम्पशन को देखते हैं या पेट्रोलियम कंजम्पशन को देखते हैं, और यहाँ पर इस प्रदेश में जिस तरह कंजम्पशन पैटर्न है वो क्या है, और ख़ास करके एलपीजी के मामले में? बिकॉज
at the end of the day we need sustainable development. So we have to shift from fossil fuel to next standard of energy. Respected Meenakshi Sundaram sir, पैनलिस्ट एंड ऑडियंस हियर। देखिए, आपका जो शुरुआत वाली लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्या था ये माँ गंगा का पानी और पहाड़ की जवानी। तो बेसिकली जो माँ गंगा का पानी है वही बहते हुए समतल एरिया में जाता है और वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा है कि यहाँ से पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो ये प्लेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस का है। कमिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो जैसे हमारे इंडियन ऑयल का आप टैग लाइन देखेंगे, दी एनर्जी ऑफ इंडिया। तो कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो तो वी वांट टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। तो जैसा आपने बताया ईवीज़ के बारे में बात किया, तो ईवीज़ अभी भी काफ़ी डेवलपिंग नेसेंट स्टेज में है और इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी नई नई कंपनीज आ रही हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। लेकिन जो पेट्रोल डीजल की बात करें तो ये अगले 40-50 साल तक रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। और यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि सिंस हिली एरिया है, आपको एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप में काफ़ी डिस्टेंसेस है, तो लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव से मान लीजिए कि पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको 50 किलोमीटर केवल फिलिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो वो एक काफ़ी सारा डेड माइलेज हो जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि इस गैप को कम किया जाए कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स खुल सकते हैं तो वो खोला जाए। उससे क्या होगा, डेड माइलेज ख़त्म होगा, तो इट itself विल ऐड टू सस्टेनेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जहाँ एलपीजी की बात की आपने, जैसे एलपीजी में आप माने कि अभी जो हमारा पेनेट्रेशन है दैट इज़ 128%, नॉट ओनली 100%। आपके जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसका मतलब 128%, यानी मल्टीपल कनेक्शंस हैं घरों में। तो एलपीजी में पेनेट्रेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। ईवीज़ में हमें अभी काफ़ी अराउंड 120 जो ईवी चार्जर्स हैं वो तो हमने ही लगा रखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ईवीज़ में अभी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी है नहीं, तो इसीलिए यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। और जहाँ तक हिली स्टेट की बात करें तो ईवीज़ यहाँ के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि जब आप हिल पे चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बेस्ट सूटेड कार्स हैं फॉर स्लोप्स। और जैसे ही आप डाउन हिल पे जाते हैं तो ईवीज़ में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो वो आपका ईवी जो है एज ए जनरेटर काम करता है, तो पावर प्रोड्यूस करता है और आपकी बैटरी को चार्ज करता है, तो वहाँ पर एनर्जी सेविंग होती है। बाकी गाड़ियों में क्या होगा, जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो इंजन अपने लिस्ट इफ़िशियंसी के साथ काम करता है, एकदम अल्टीमेट पॉल्यूशन भी फैलाएगा। और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपका इंजन चलते रहता है, वहाँ एनर्जी बर्बाद होती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ईवीज़ आर बेस्ट फॉर उत्तराखंड, बट उसमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज़ अ वर्ल्ड कॉल्ड रेंज एंग्जाइटी। आप ईवी लेके निकले तो आपको ये भरोसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए तो मैं कहाँ चार्ज करूँगा। तो इसीलिए ईवी इंफ्रा क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड चीज़ है, टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। अभी का ईवीज़ आर इवॉल्विंग। जैसे आप बात करें चार्जिंग की, तो जैसे मोबाइल में पहले नोकिया का पतले पिन का चार्जर होता था, फिर कोई सोनी का फ़ोन आया उसका अलग चार्जर होता था। तो ऐसे ईवीज़ में भी अभी इवॉल्व हो रहे हैं, आपको अभी मल्टीपल टाइप के चार्जर्स हैं। तो हमने चार्जिंग स्टेशन लगा भी दिया, तो ये कस्टमर को एश्योरिटी नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मेरे टाइप का ही चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपके चार्जर्स हैं, स्लो चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 5 मिनट में आपकी फ्यूलिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, आप 400 किलोमीटर बेधड़क जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे फास्ट चार्जर आपको मिल गया तब तो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, आप 300 किलोमीटर जा सकते हैं। कहने का मतलब स्टेट के अपने लिए अभी हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए जिसमें कि ईवीज़ इतना बड़ा रोल प्ले कर सके। काजमिन साहब, आपने पूरे स्टेट को इतने वर्षों से देखा है, एक तरह से इसकी हिस्ट्री को आपने डॉक्यूमेंट किया है एक पत्रकार के तौर पर, और डेवलपमेंट तमाम सरकारों में हुआ है, इस सरकार में भी हो रहा है। लेकिन हम जब प्रदेश से बाहर के लोग
दिल्ली में बैठ के खबरें देखते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर की हर साल बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं, साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन हमारा जो एक परसेप्शन बनता है कि ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है और उसका काफ़ी सारा जो दोष जो है वो जो डेवलपमेंट वर्क है उनको दिया जाता है। तो आपकी नज़र में पिछले कई वर्षों में या हाल के वर्षों में और आने वाले समय में डेवलपमेंट का काम जिस तरह से हो रहा है वो क्या सही दिशा में जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की? रोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ास तौर पे इंडियन मास्टरमाइंड्स ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। और मेरे साथी शरद गुप्ता हैं, ये पत्रकार हैं, इन्होंने शायद इसीलिए मुझे बुला लिया, जबकि मैं ज़्यादा सूटेड नहीं हूँ यहाँ बैठने के लिए। लेकिन मैंने 98 से क्लोजली उत्तराखंड की डेवलपमेंट को देखा। जब ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, ज़िला था, तब से मैं यहाँ पोस्टेड था, और फिर उत्तराखंड बनते हुए देखा, और सारा जो हुआ 25 साल अब हो रहे हैं। और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं यहाँ पोस्टेड था और शरद दिल्ली से आए 9 नवंबर 2000 को, और हमने ये जो स्वीरिंग इन हुई पहले इंटरिम चीफ मिनिस्टर की, वो कवर की फॉरवर्ड न्यूज़पेपर, हम दोनों की बाईलाइन इकट्ठी छपी उसमें जी। तो आपने जो बात की डेवलपमेंट की, देखिए डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। मैं मतलब आपको बता सकता हूँ कि हर शोबे में, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन क्या वो उस लेवल तक है जिसकी आपने बात की अभी के डिज़ास्टर्स होते हैं। मतलब हिमालय में तो डिज़ास्टर्स होते ही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते ही हैं। अब कई बार पॉलिसीज़ या ऐसी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जो कि कंट्रीब्यूटर बन जाती हैं ऐसे डिज़ास्टर्स में, तो उस पर चेक रखने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। मैं तो आपको बताऊं कि मैं एक स्टोरी करने के लिए गुंजी गया 2003 में, तो मुझे 5 दिन पैदल जाना पड़ा वहाँ पहुँचने के लिए, और 5 दिन वापस पैदल आना पड़ा। आज आप एक दिन में जा सकते हैं गाड़ी से वहाँ, सड़कें इतनी डेवलपमेंट हुई। लेकिन फिर सवाल है कि क्या हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेसर साहब ने बड़ी बात की कि माइग्रेशन रुक नहीं रही है किसी भी तरह, तो माइग्रेशन रोकने के लिए वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट मॉडल जो है, हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, और उसमें फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है। अगर वहाँ पे दिन में बंदर, रात को सूअर, और बच्चे सेफ नहीं हैं लेपर्ड से, तो ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं वहाँ से माइग्रेशन के। तो इन सब के बारे में जो गवर्नेंस करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें सोचना होगा इसके बारे में, वैसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो पीपल ओरिएंटेड हों। और एक और जो बात मुझे लग रही है, जो मैं देख रहा हूँ इन 25 सालों में, और अब कुछ ज़्यादा ही आगे आ रही है, वो है कि सोशल कोहिजन की बहुत ज़रूरत है। फिर डिविसिव और डिवाइडिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं करेंगी लॉन्ग रन में। तो लोगों को साथ रह के, सबको साथ मिल के, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, वो साथ लेके चलने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये सब बातें होंगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होगी। इनसे प्रोफेसर साहब ज़्यादा बोल पाएंगे। सर, इकोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट must go hand in hand. How do we do that? I mean, that has been challenged for so many states, especially for this state, for so many years. I think, the kind of development model which we have adopted, now plains are saturating. Plains में ज़मीन की कमी हो रही है। Plains में अभी मतलब जो है they are over saturated, I must say, in terms of all economic activities. कितना करेंगे आप उसको? It is a football also. It was considered as a football when we were created as a separate state. कि ये separate state ये जिले में लाने से हमको जो है फुटबॉल का काम करेंगे। Now what happened, I think, उत्तराखंड needs to be a, सेक्रेटरी साहब अभी चले गए, I think, मेरे ख्याल से कि एक we have to reinvent our development model in the sense that बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। We have to make a hill-centric development model now. Hill-centric development model means कि जहाँ पे इकोलॉजी, इकोनॉमी साथ साथ काम करना पड़े। उसके लिए कैसे? बाई चांस जो है आप जो है यदि हॉर्टिकल्चर का एक स्कोप है, ऑफ सीजनल वेजिटेबल का स्कोप है। दूसरा सबसे बड़ा जो उभरता हुआ क्षेत्र आ रहा है मेरे ख्याल से,
वो है कि मिलेट्स का, जो आपके ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी वो उसकी डिमांड होगी। अब वो मिलेट ईयर भी हम मना रहे हैं, और वो हम लोगों का आज की डेट में जो देहरादून में जो आप मिलेट जो तोता झुमरा खा रहे हैं वो बेसिकली नागपुर पठार का आ रहा है, छत्तीसगढ़ का आ रहा है, झारखंड का आ रहा है, वो यहाँ पे उत्तराखंड कम है, और आप हम उसको क्लेम करते हैं कि हम उसको मतलब उत्तराखंड का खरीद रहे हैं। आई थिंक इफ़ यू सी द काइंड ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे काजमी साहब ने कहा कि हम लोगों को यदि एग्रीकल्चर सेंट्रिक मतलब डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट करें वैल्यू एडिशन का, जरूरी नहीं है कि हम मतलब जो है कि राइस उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं। मेरे ख्याल से हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर मॉडल जब हम अपनाएं तो इससे इकोलॉजी को भी मतलब नुकसान नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर होगी। इसके लिए सबसे बड़े ज़रूरत है वहाँ पे लैंड पूलिंग की, क्योंकि आज आपकी पास लैंड है, डिफरेंट क्वालिटी के लैंड है। कोई भी उस लैंड को बंजर पड़ी हुई है, इतना हमारा इमोशनल अटैचमेंट उस लैंड से है कि कोई उसको देना नहीं चाहता है। मैंने बहुत पहले एक दफ़े बोला था कि इस लैंड को जो है यदि 20 साल तक ये लैंड कोई मतलब जो है यूज़ नहीं करता, उसे सरकार को दे देना चाहिए। लेट गवर्नमेंट शुड यूज़ दैट, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल तभी हो सकता है मेरे ख्याल से क्योंकि अभी भी लोगों को एक उम्मीद है कि इस ज़मीन से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो बंजर ज़मीन है बट स्टिल दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल वैल्यूज। मुझे लगता है कि जब तक उस ज़मीन को पूलिंग ना किया जाए एज ए कोऑपरेटिव बेस, और उसमें जो है हॉर्टिकल्चर लेड डेवलपमेंट की बात ना करें हम लोग, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ह्यूज पोटेंशियल अभी जो है मशीन फार्मिंग जो है, मशीन फिशरीज का जो है, फिशरीज इज ऑल्सो इमर्जिंग एज मेजर इशू, कि जहाँ पे फिशरीज फार्मर्स की इनकम बढ़ी है। एग्जाम्पल अच्छे हैं, अभी लोग कीवी उगा रहे हैं। जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो लोग काफ़ी आए, उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। दीज एक्सपेरिमेंट हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अटकती बात कहाँ पे है कि वहाँ पे हम उसको प्रोडक्शन को अपस्केल नहीं कर पाते हैं। यदि हमें एक ट्रक मतलब कीवी चाहिए तो हमें एक ट्रक कीवी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 5 किलो 10 किलो 25 किलो कीवी के लिए वहाँ कौन जाएगा। आई थिंक वो चीज़ जो है जब तक हम प्रोडक्शन को अपस्केल नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है एक बहुत बड़ी बात ये नहीं कर सकते कि पहाड़ का डेवलपमेंट जो है हॉर्टिकल्चर मॉडल बेस्ड हो जाए। उसके लिए हमें जो है स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी ज़मीन की पूलिंग, उनको समय पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है, समय पे अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स देने चाहिए, और इससे जो है मुझे लगता है कि काफ़ी माइग्रेशन में असर पड़ेगा, माइग्रेशन कम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे ख्याल से कि आप जो है कि जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आप देखिए कि उस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दे आर, आई थिंक दे आर डिस्ट्रॉइंग द होल इकोलॉजी ऑफ द रीजन। और वहाँ पे उस हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में बेसिकली लोकल आदमी भी एम्प्लॉयड नहीं है। आप वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात देखेंगे तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयड है वहाँ पे स्किल्ड लेबर है। हम लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे किया है कि ग्रेजुएट प्रोसीजर, सिंपल ग्रेजुएट प्रोसीजर करते हैं। ITIs आज की डेट में, पॉलिटेक्निक आज की डेट में जो है ऑलमोस्ट डिफंक्ट है पहाड़ में। बेसिकली मेरे ख्याल से वहाँ पे अभी भी पुराने ब्यूटिशियन के कोर्सेज, पुराने मतलब जो है टर्नर के कोर्सेज, पुराने वेल्डर के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो कि अभी डिमांड में नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उन ITIs और पॉलिटेक्निक को टोटली रिवैम्प करके अभी पहाड़ सेंट्रिक एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात करें हम उसमें, कि जो मतलब जो वहाँ पे उसको कैसे मतलब बीज होगा, कैसे उसको मतलब जो है एग्री एंटरप्रेन्योर तैयार करें हम वहाँ पे, कि वहाँ कैसे बीज, कैसे खाद, कैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाएं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आप उसको इंटरवेंशन कर सकते हो और लोगों को मतलब जो है जो युवा है पर्टिकुलरली उसको वहाँ इंगेज कर सकते हो। सो एक तो एक सेक्टर। दूसरा सेक्टर जो है कि मुझे लगता है कि जो मैं पंत सर से बार बार डिस्कस करता हूँ कि सर ऐसा है कि बेसिकली उत्तराखंड में मेरे ख्याल से जो हम लोगों की एक बेसिक धारणा थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, गैरसैंण जो हमने मिस किया उसका आज की डेट में जो है हम लोगों का ये डेवलपमेंट, जो रीजनल डेवलपमेंट इनइक्वलिटी है वो आज की डेट में मिल रही है। उत्तराखंड में जो है जो हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम और रुद्रप्रयाग की पर कैपिटा इनकम में जो 400 गुना फर्क, 4 टाइम्स मतलब फर्क है। तो ये यदि उत्तराखंड में मतलब, और एक सिर्फ एक ऐसा ही पहाड़ी राज्य है कि जहाँ पे जो है राज्य की राजधानी अभी तक टेम्पररी है और वो भी प्लेन एरिया में है। यदि वो राजधानी पहाड़ में होती तो मेरे ख्याल से सारे सेक्रेटरी, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे हम लोग जैसे प्रोफेसर ऊपर जाते रहते, कम से कम मतलब देखते कुछ मतलब जो है हमें भी हार्डशिप का मालूम होता और हम लोगों को मतलब जो कम से कम पहाड़ के डेवलपमेंट की बात करनी होती। आई थिंक वो हमने बड़ा मिस किया, परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जो हमारे पास 95 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, यदि आप उस ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को पर्टिकुलर एक क्लस्टर के रूप में डेवलप कर सके, क्योंकि आप एक बढ़िया सा टीचर देते हो, आप एक बढ़िया से हेल्थ एक्सपर्ट को देते हो। वहाँ पे लोग बोलते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं टिकते हैं, टीचर नहीं टिकते, वो कहाँ टिकेगा? उसके पास एक रहने की ठीक से जगह नहीं है वहाँ पे।
पुराने जब आप ब्लॉक हेडक्वार्टर से जाइए, इतने गंदे ढंग से वहाँ बस्तियाँ बनी हुई, दीज आर नॉट लिवेबल प्लेसेस। आप वहाँ पे उसे एक पढ़ा लिखा आदमी भेजते हैं, एक ट्रेंड आदमी भेजते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ पे एक अच्छी अकोमोडेशन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। आई थिंक उसके लिए यदि आपको ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को डेवलप करें, जहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़, जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी, आप पूल करें सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, यू जस्ट पूल दीज रिसोर्सेज, और 95 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स आप डेवलप कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ what do you call all modern facilities, रिपेयर मेंटेनेंस। यदि किसी कार खराब हो तो कोर्ट द्वारा आना पड़ता है उसको, रिपेयर मेंटेनेंस। यदि उसको इंटीग्रेटेड सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली जो है पहाड़ में जो है पैदल नहीं दौड़ता हो जाएगा। वंडरफुल सर। सो हम यहाँ बैठ के जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि सरकार काफ़ी डेवलपमेंट करती आ रही है, पिछली सरकारों ने भी किए हैं, ये सरकार भी काफ़ी सारा विकास के काम कर रही है, और ख़ास तौर पे जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी विज़न 2047 को लेकर के पूरे देश के सभी स्टेट्स को लेकर के हम एक उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि पूरा देश, हर स्टेट तरक्की करे, बट वी कांट लेवल अप द होल स्टेट। आई मीन देयर इज़ अ डेमोग्राफी, सो उसका तो वो नेचुरल है, उसको आप समतल तो नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि पानी को रोक लें, वो तो बहेगी, और ना ही तो आप जवानी को रोक सकते हैं, वो भी बहेगी। तो जो नहीं कर सकते हैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करके और उसे रोकने की कोशिश करके, मतलब मेरे नज़रिए में कुछ हासिल होगा नहीं। तो जो है और जो सच्चाई है उसका हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपने कहा, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ जी इस पर ज़्यादा बता पाएंगे, बिकॉज आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ काम करते हैं और तमाम इस तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट्स हों, इंडिविजुअल्स हों, एसएमईज हों, स्टार्टअप्स हों। ये एक बड़ी बात है कि आपका टैलेंट तो बाहर जाता है, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बिजनेसेस करते हैं, सच है। जो टैलेंट आपका बाहर गया है वो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फाइनेंशियल डेवलपमेंट में किसी तरह का स्टेक होल्डर, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बट एक्टिव रोल कैसे प्ले कर सके। और जो लोकल आपका टैलेंट है, अगेन यू कांट चेंज द डेमोग्राफी। आप पहाड़ को समतल नहीं कर सकते, जो पहाड़ है, जो दुर्गम रास्ता है वो दुर्गम रास्ता रहेगा, साल में जहाँ जिस तरह का मौसम होता है वहाँ वैसा ही रहेगा। जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी चीज़ें भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती हैं और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली बोथ, वो कैसे होगा? नहीं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे जो है अभी चर्चा करने के लिए मेरे को बोला है। उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 3 पॉइंट्स विच हैड इमर्ज्ड आउट ऑफ टुडे डिस्कशन, इन फैक्ट व्हाट प्रोफेसर साहब सेड, व्हाट द अदर गेस्ट पैनलिस्ट सेड। You see, the thing here in Uttarakhand is that it's a hilly terrain. Majority of the landscape is hilly. तो natural disaster को टालना तो बहुत मुश्किल है. What we should focus upon is how to mitigate the challenge. So disaster management के लिए we have a dedicated department, and I am very glad to share with you that we had a workshop with the state disaster management as well. क्योंकि देखिए यहाँ की जो डेमोग्राफी आपने बताई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो लोगों को पता नहीं है। हिल पे किस तरह का कंस्ट्रक्शंस हो, किस तरह के रिटेंशंस वॉल बनने चाहिए अलॉन्ग द हाईवेज सो दैट वी कैन अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड लॉट ऑफ अदर डिस्ट्रक्शंस। यहाँ की जो बिल्डिंग्स बननी चाहिए वो कैसे कॉन्सेप्ट पे बननी चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ इवन डेवलप्ड नेशनल बिल्डिंग कोड, एंड इट वेरी आउटराइटली आउटलाइन द फैक्ट्स कि हर एक टेरेन के हिसाब से किस तरह का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वी ऑल रिमेंबर दैट नाइटमेयर, जब हमारे केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद हमें ये सीख लेनी चाहिए थी कि जो अनप्लान कंस्ट्रक्शंस हैं एंड द कंस्ट्रक्शन विच इज़ मोर सूटेबल फॉर द हिली टेरेन ऑफ उत्तराखंड, उस पर हमें फोकस करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर जो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, अलाइनमेंट है, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग कॉन्सेप्ट फिट फॉर द हिली स्टेट।
That is one thing where we need to focus upon. And secondly, जो state disaster management है उनके रोल में भी ये चीज़ें आती हैं कि what are the precautions one has to take so as to avoid these kind of calamities. तो एक प्रयास ये किया जाए कि इस तरह के डिपार्टमेंट के साथ जो established guidelines हैं उन पर हम डिटेल में डिस्कशंस करें, उनको समझाएं, तो ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं. मैंने एक एग्जांपल आपको हाईवे का भी दिया. दूसरा जो प्रोफेसर साहब ने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करी, देखिए दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन दैट वी हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम मे बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मे बी टू एन एक्सटेंड इट मे बी काइंड ऑफ अ गुड डिसीजन कि भाई हम स्विच ओवर करें किसी और एनर्जी सोर्स पे. बट देखिए व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज उत्तराखंड इज रिच इन दीज नेचुरल रिवर्स, सो वी मस्ट मेटरलाइज दैट अपॉर्चुनिटी. बट उसमें पॉइंट ये है, इट शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस टू द नेचुरल इकोलॉजी, what you call the environment. तो अभी जितने भी यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, the precautions have been taken that it doesn't create much impact on the environment and ecology. Moreover, जो मैं ये जो आपको कहना चाह रहा था कि जो इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनको हम ज़्यादा टैप करें, क्योंकि देखिए थर्मल एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, दे आर नॉट अवर फ्यूचर. द फ्यूचर लाइज विद द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो वी मस्ट रादर एंडोर्स द आइडियाज वेयर वी हैव मोर सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हाँ, उसका जो साइड इफेक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं, दैट्स अनदर थिंग. आपने जो मेरे से सवाल वैसे किया कि देखिए उत्तराखंड का जो यूथ है, दे आर वेरी टैलेंटेड. इनफैक्ट आपने जब ये सवाल किया तो मेरा एक शॉर्ट जो आपके साथ एक डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको बताया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीइंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्ड प्रमोशन एक्टिविटी. तो हमने पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड्स क्लब खुले हैं और फंडामेंटल लेवल पे बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि कैसे आपके साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो डे टू डे लाइफ में आप स्टैंडर्ड्स के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यही युवा कल हमारा देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश को आगे ले जाएगा. और अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको कहा टूरिज्म इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री जो लोकल यहाँ पे है, अगर उनको हम बढ़ावा दें, यूथ को इतना स्किल्ड कर दें, उनको उनसे संबंधित जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक होटल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लें. देयर इज़ अ बिग होटल इंडस्ट्री पार्ट ऑफ अ बिग चेन और देयर इज़ अ लोकल इंडस्ट्री. As a customer, we prefer to follow certain set norms. कि होटल इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो गई है कि अच्छे से अच्छी सर्विसेज हमें चाहिए. तो आज जो यहाँ पे होम स्टेज हैं, B&Bs and so many things are in the hospitality industry. Why don't we make it standardized? Why don't we make them more up market? तो यूथ को पहले हमें अवेयर करना है, एनलाइटन करना है थ्रू देयर एजुकेशन सिस्टम. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ब्यूरो ने अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज वी हैड गॉट इमेंस सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके साथ मिल के ये स्टैंडर्ड्स क्लब खोले गए हैं जिस पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आवर डे टू डे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, सिस्टम है, उन पर चर्चा बच्चों से की जाती है. एंड सेकेंडली, जब ये बच्चे बड़े होकर किसी इंडस्ट्री से जुड़ते हैं या किसी सर्विसेज से जुड़ते हैं, उत्तराखंड में वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव one or two big industrial setups in Haridwar or Sidkul, in the form of Sidkul, Sitarganj and Rudrapur. वहाँ पे जो big industrial giants हैं, वहाँ पर employment भी as per I think from the state government policy अच्छा खासा हमारे youth को मिल रहा है. लेकिन बात वही आती है कि अगर skilled youth नहीं है, the company will not imbibe them, they will not absorb them. तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड के यूथ को in our own capacity, though we have skill development councils, we have other polytechnics and ITIs and so many institutions, but सबसे हम जुड़े हैं और उनके माध्यम से यूथ को और एम्पावर कर रहे हैं, कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, so that they remain here in the state and help in the growth of the state. Thank you, sir. So I think we need a more creative approach towards solving these problems. And again, we can't treat the whole state as one in terms of demography and physical or natural challenges. Now the floor is open for audience. आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे किसी स्पेसिफिक पैनलिस्ट से, तो आपका स्वागत है. आप लोग सब उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं. कुछ समय पहले भी हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड और श्रेष्ठ भारत के जरिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. तो एक लाइन जो मनोज ने कही थी उसी को मैं रिपीट करता हूँ कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों नहीं रुकते.
कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे पैनलिस्ट, जिसकी वजह से कम पहाड़ का पानी ना रुक पाए, जवानी तो रुक जाए यहाँ पे? देखिए, जो पलायन है ना, पलायन तो दुनिया का एक नियम है और ये पलायन होता रहता है। और यदि हम पलायन नहीं करते तो शायद हम इस हॉल में नहीं बैठा होता, ये कोई भी नहीं बैठे होते। एवरीबडी इज ऑलमोस्ट माइग्रेटिंग, वो अच्छी बात है। पर जब पलायन जो है एकदम डिस्ट्रेस में होता है कि उसको मतलब मजबूरी में उसको पलायन करना पड़ता है, उसको लगता है कि मेरे पास अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ही वांटेड टू हैव समथिंग हियर, और ये उसको उस ढंग से पलायन करना पड़ता है। आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ इट्स अराउंड 60% ऑफ दैट कंपोनेंट विच यू कॉल डिस्ट्रेस माइग्रेशन। और इस 60% यूथ को यदि हम जैसे सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि अपने अपने तरह से छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर के, पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से यदि स्किल ट्रेनिंग को विलेज लेवल पे ही, ग्राम पंचायत लेवल पे ही और मतलब जो है ब्लॉक स्तर लेवल पे यदि आप उसको स्ट्रेंथन कर लें हम लोग, तो काफ़ी लोगों को जो है एक जो डिस्टेंस में माइग्रेशन करते हैं और उनको अल्टीमेटली जब माइग्रेट करता है तो उसकी एक मिनिमम वेज उसको नहीं मिल पाती, क्योंकि ही इज़ अनस्किल्ड पर्सन, और उसको जो है कम से कम वो स्किल सीखने में 4-5 साल लग जाता है। तो ये 5 साल 6 साल का उसका जो फॉरगोन वेजेज जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि उसकी वेजेज उसने लॉस कर चुका है, वो हम उसको रोक सकते थे यदि हम उसको पहले शुरू ही मतलब ट्रेनिंग देते स्कूल लेवल पे। तो हम 6-7 साल 10 साल जो लेबर मार्केट में स्ट्रगल करता है, एक डिश वाशर में एक मतलब जो है क्या वो सिंपल मतलब हेल्पर से लेके मतलब फाइन शेफ में कन्वर्ट होता है, मेरे ख्याल से वो जो पीरियड 7-8 साल 10 साल के पीरियड होता है, हम लोगों को उसको कम कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जैसे आ रहे कि टूरिज्म हम लोगों के हर जगह बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन का मोड है, परंतु अभी आप देखिए कि मतलब जो है कि हम लोगों के पास जो सर आप लोगों ने जो उत्तराखंड माइग्रेशन पे पूरा कन्क्लेव कराया था, उसमें एक बात उभर के आई थी कि हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स का मतलब जो डेवलप करने की जरूरत है। एक टैक्सी ड्राइवर जो है सीधा मतलब वी वांट रोड बट वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ स्पीड कि हम बद्रीनाथ मतलब जो है सीधे चुपचाप ऋषिकेश से बैठे और 6 घंटे बद्रीनाथ पहुंच गए, क्योंकि रोड अच्छी है। उसको ऐसा आदमी ड्राइवर चाहिए कि जो उसको इंगेज कर सके कि ये पहाड़ इस नाम से है, ये पर्वत इस नाम से है, इसका ये पेड़ की ब्यूटी है। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ इंगेजिंग थिंग्स इफ यू डू, ही विल बी एवरेज स्टे ऑफ दैट फेलो विल बी मोर। एंड जब यदि आप एवरेज स्टे आपको टूरिस्ट का ज़्यादा होता है तो मुझे लगता है इकोनॉमी ग्रो करती है। आई थिंक दिस काइंड ऑफ स्मॉल इनिशिएटिव्स एज ए टिंकरिंग लेवल जो मतलब जो स्किल्स के थ्रू ही आ सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज मतलब मुझे लगता है, जैसे बात भी हुई है कि आप आज की डेट में बहुत सारे वहाँ पे एजेड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, यूथ ही नहीं है, एजेड पॉपुलेशन जो है दे आर सफरिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स, और उनको सोशल सपोर्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है कि जो लोग यूथ भी जो है करीब 40% यूथ जो है दे आर सफरिंग विद सम काइंड वन और अदर काइंड ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। और ये उत्तराखंड की बात नहीं, पूरा मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये जॉब मार्केट चैलेंजेस हैं, जो आपके मतलब यूथ की जो पढ़ाई का प्रेशर है उसके पास जो जॉब मार्केट का प्रेशर है, उनके पास मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है और उनकी हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है। यदि हम स्कूलिंग ऐसे ही ऐसा उन पे मेंटल साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें उनको, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा जो यूथ जो है वो एग्रेसिव नहीं होगा और उनको ये नहीं होगी कि मुझे मतलब बस अब कुछ करना है, मुझे सीधा दिल्ली भागना है। आई थिंक ही कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स बाय स्टेइंग बैक। थैंक यू सर, थैंक यू। सो जैसा कहते हैं कि रामराज एक परिकल्पना है और सतत संकल्प है, और उसके प्रति हम सब लगातार शासन और प्रशासन काम करते रहता है। पिछली सरकारें, ये सरकार और हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी एक तरह से उसी आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन को देने की कोशिश करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, और इसी तरह डेवलपमेंट भी एक कंटिन्यूस थिंग है जो लगातार चलती रहेगी। चैलेंजेस आते रहेंगे, उन चैलेंजेस को मिटिगेट करते हुए यह प्रदेश जितनी तरक्की आज कर चुका है इससे बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और इस चर्चा से जो बातें अच्छी बातें निकल के आई हैं उसका बहुत सदुपयोग होगा प्रशासन के कार्य में। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श चंपावत गवर्नमेंट का प्रोग्राम मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, बिकॉज दे वांट टू डेवलप चंपावत मतलब एज ए काइंड ऑफ ग्रोथ मॉडल डिस्ट्रिक्ट, और वो उसके काफ़ी दूरगामी अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। आई एम श्योर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच।